everyone. I'm Jitendra Singh. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today I have with me Mr. Manuj Matta. He has worked in sales and marketing for more than 12 years across various MNCs. His personal and professional life has always been like a roller coaster ride with lots of ups and downs. Being a single child and one of the biggest introvert in school to being a public speaker, fighting odds at various stages of his life. For example, from being an average student at school to standing against politics, his life felt like it is moving fast paced when he got the opportunity to lead India, the subcontinent market in Thailand for another MNC. But little did he knew that by 2020 February, the life will take another U-turn with COVID-19. This marked his journey as a freelancer, from teaching IELTS to career counseling, tried his hands all, but eventually found his zing in public speaking. Today, he will be discussing with us about his life journey. So let us hear from him. Welcome, Manuj. The platform is open and now over to you. Thank you. Thank you so much, and Jitendra, and for inviting me to this platform. And yes, as rightly said, I've had a very roller coaster of a ride in my life, and with a lot of ups and downs, and not just in professional life, in my personal life as well. So fighting the odds. Normally, we see a lot of people whenever they actually go through such situations, they break down. They end up losing their calm, losing their cool, or take a stern step. But here we need to learn that this is not exactly how their situation is. It is a situation with everyone. It can happen with everyone and anyone. We saw that in COVID, right? We saw that how people actually, healthiest of the people were not able to survive. Correct. or the most unhealthy were actually surviving. So life, so it is basically, I would say, it is how the kind of world has shaped in. Correct. And we probably realized it late. So that's how things have been, and that's what I've realized, and that's what I speak about. Right. So let's begin. And first thing I'd like to know from you is, like, how did your past life has affected the person who you are and what you wanted to be in your life? So my past life has always been very difficult or different, I would say. I was not like a regular child who would go and probably play and get the main roles. So हमेशा वो बीच का बिच्छू होता था ना. I was always that. And then when you talk about school, so my own friends used to, they sometimes used to beat me, like as if they're playing. Okay. So that's how when I started, I've been bullied. I've been my own teachers used to tell me, you'll not do anything in life. They used to tell my parents, he'll do nothing in life. He's not worth it. Even just because I didn't get, or I was not good with math, or probably with one or two subjects, or I never used to get good marks. I always was an average. 40 to 60% was my marks, even though I used to try. I used to study. ऐसा नहीं था कि बाहर जाके रोज खेलना था. When I went into my college life, similarly things unfold. Even when I actually talk about my professional life. So, but yes, I would say after I went into college, I showed more courage. When I talk about my personal life, how my personal life is affected. So, being an only child, it is expected कि life smooth होगी, they're probably rich, they're probably doing well, सारी जायदाद मिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं. And the but that is not how. Expectation from parents would also be high. So he's pampered or something. So first of all, my parents never pampered me. We came from a very humble background. My father has seen hardship since the age of 16. His father, like my grandfather, was murdered, and his body was never found. So he started at the age of 16. He took care of his mother. So when I talk about my life, so when I was in class 9th or 10th, my father has huge losses in business. We were almost under a huge debt, and my mom's salary was somewhere around 25,000. I wasn't even earning. After coming out of that, along with surviving those teachers' comments and all these things, during the middle of my career, basically when I felt that okay, now this is the time that probably I will grow slowly and gradually. That time I figured out that same situation happened again, and this time my father had taken loans from more unreliable sources, not from the reliable sources. So now we again were under debt. Even our property
was under was kept for just mere few lakhs of rupees. Correct. But fortunately, we came out of that as well. Yes, I would say I was completely with my mother that time, considering that that she would she had not done anything wrong. Right. And just to tell my audience, my parents, though we live in the same house, we have 2 floors, but unfortunately they're not together anymore. Okay. So, yeah. So my life has always been that twists and turns, and all that complexities have happened in office. When you are actually facing that mental stress from home, and then you go to the office and Correct. again are That treated like you're a impact school your child. correct. That impact your work really heavy. Even though you're performing, then also. So I've always had, you can say that always in my sales have always been good. I've always have performed wherever I've worked. You can say, fortunately, you can say I've always been the performer. But still, when your own directors of the company would counsel you that don't make friends with these people, make friends with these people. Correct. I don't know how it would impact my performance, but even if someone is doing good, I think you should let them go free. Correct. But that's how things unfold, and that made me a more strong person. So now if a problem comes to me, I am more resilient. Correct. Some people miss out there and they broke. Yes, and I think it's okay to cry. Let it out, let it go. वो सारा जब जाएगा ना, then you will be a more strong or a powerful person. तो उसके बाद क्या है, mind जब ठंडा होगा, then you can think, अच्छा next step क्या करना है. You can't do anything of that situation. Correct. So if I talk about the things you are passionate about in your life, what are those things? So passion, actually, I was very passionate about sales, but eventually I realized I was very passionate about talking to people. Okay. So I was, and yes, of course, I read a lot of books as well, especially self-help books, and that is all completely out of passion. But considering that so I recently realized my actual passion, because when I started training students into, after leaving after my job was not there, I started teaching IELTS. That time also, more than teaching IELTS, I think I enjoyed being a mentor to someone who's come to me. Then I saw some advertisements of few digital marketers selling, their video ads and all. I attended their workshop, and one person I think was selling this video sales mastery. I think it's quite popular on as well. When I attended his workshop, actually I realized what he is doing. He's a business coach and a public speaker. So I realized that he has just picked up that portion and he's selling it on digital platform. So I don't have to purchase that, but that moment, when I saw him addressing people, I realized that so my passion is actually talking to people, and that too in group. So that's when I decided to be on stage. And till now I've already delivered about close to 30-40 speeches at various platforms. Wonderful. So I'm passionate about that, and that's what I'm doing. And now I think if that's my passion, I think I should monetize also. Correct. So that's what I believe. But yes, I would like to also give this message that don't really run after your passion. Don't really focus on making your passion monetize always, because it is not practically possible for every passion. But yes, always it is very important that you should love or at least enjoy or like what you do. Right. So you already mentioned about your work there. You were facing some of the difficulties and odd times. So I'd like to know more onto it. Like, how was your work and experience look like? What all you did? How you started? How you shifted to a different tangent altogether? So just share basic details about all those. So I landed. So when I was in school, after my class 12, so a lot of people were suggesting do CA, because I had taken commerce without math. Someone said do BCA, so I was probably inclined towards BCA. Now now this message of mine probably can be guidance for or an idea for more people as well. Correct. So how actually it happened was that when my school was ending, a friend of mine said let's fill up the form of hotel management. So I wanted to fill BBA, BCA, CA and hotel management, 4 things. But eventually BBA का form कभी भरा नहीं. BCA के लिए when I went for coaching, there was a receptionist who said BCA में scope कहाँ है? Computer is dying, because that was 2007, 2008, basically 2005. Sorry, actually computers were dying that, and that actually changed my life. I could have been a computer engineer, but that changed my life just because someone who did not have knowledge about that told me that. And CA के लिए, I think I found out that it was very difficult, and then my parents were also concerned. So my mother was a teacher, and her principal, she said let him do whatever. That saved my life, and I joined hotel management. In hotel management, I again, as I said,
I realized late that I love speaking to people, but there were 4 fields normally: front office, housekeeping, kitchens, and so सब कहते हैं शेफ बनो, but I was inclined towards front office क्योंकि लोगों से बात करना पसंद था. So front office से जब मैं move किया, when I got my first job, so I went into this. So I'll not name companies. So my first company A, just so that कोई ऐसा concern ना हो. So company A में जब मैं गया, so I was so the boss was very distant from everyone, and I was sent to a very lucrative place where जहाँ पे सिर्फ luxury होती थी, only luxury you had to meet there. So when I went to this place, I worked for 2.5-3 months, and that अब मुझे नहीं पता था आपस में politics नाम की चीज भी होती है. So they said कि कोई यहाँ पे आएगा तो complaint लिख देना आप. So I wrote that complaint, and now I was told that you have been shifted to a more the dominant to business center basically, where the growth level or the growth percentage is the lowest. If you are in front office, you will not want to be in business center, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब अगर आप कोई रिटायर हो रहा है या फिर कोई ऐसा है जो बिल्कुल फ्रेशर है, those kind of people are hired for that role. तो वहाँ से मैंने वो ज्वाइन भी कर लिया. But what I used to do, मैं फ्रंट ऑफिस डेस्क पे आके काम सीखता था, and that was 2008. So by December, half of the people in that company were told कि you can either take 3 months salary and leave, or because it's recession, or you can take 3 months leave without pay, and then we'll see after 3 months how things unfold. तो वहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी, because my college 4th year was in industry, तो मेरे को presentation देनी थी. तो मैं concerned था, but I said ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, let's take 3 months LWP. वो लिया, कोशिश करता रहा, and as I said, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. Within 15 days I got an interview call. अब वहाँ पे कैशियर रोल के लिए था, and I was in business center. But वहाँ जाके क्योंकि मैंने डेस्क पे टाइम स्पेंड किया था, अपना एक्स्ट्रा टाइम देता था मैं, जान के कि मैं कुछ सीखूं. So I told everything to the person over there. अब वहाँ पे मैंने फिर ज्वाइन किया around Jan. साल भर अच्छा चल रहा था, things were going smooth. I was getting good lucrative departments, cashiering and all. So one incident happened that a lot of staff went. कई बार होता है कि एकदम कई लोग चले जाते हैं. So we were short staffed and you were under training. One given day somehow, और लोग कैमरा में भी कभी पता नहीं चला, 50,000 rupees got stolen, and मेरी सैलरी कुछ 7,000 all got debited to me. अब तो चलो खैर 3-4 months का था, कुछ टिप्स वगैरह एडजस्ट हो गए. इस कंपनी बी में आई स्टिल मैनेज कि चलो ये तो पार्ट एंड पार्सल है. अभी भी पॉलिटिक्स वाला पार्ट इतना ज्यादा नहीं पता था मुझे, अभी पहले वाले एक्सपीरियंस से थोड़ा सा मैंने सीख लिया था. अब वहाँ पे देयर वाज अ गर्ल who somehow everyone felt कि ये क्लोज हो रही है बॉस के, एंड शी गॉट प्रमोटेड, एंड देयर वाज अनदर गर्ल who was her friend and she got promoted. तो हम लोगों ने उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लिया, because considering कि even I was senior, but there was something which was attached to my name. But 6 months, within 6 months, both of them got double promotion, and we were shocked. But everyone else in the department were laughing. So I realized कि भाई ये भी चीजें होती है. So there is something when someone becomes your love interest, you actually. तो कंपनी B से फिर मैं कंपनी C की तरफ गया. मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को ये नहीं करना. So I made few friends into sales जो थोड़ा सा गाइड करते थे, कर लो, देख लो, ट्राई कर लो. So वहाँ से फिर मैं कंपनी C में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली सेल्स में, and it was one of the most renowned companies in India if I talk about hotels. So sales and marketing was a breakthrough for me, और वो भी banquet sales. तो जो बंदा फ्रंट ऑफिस में था, जो कभी किचन और F&B में से रहा नहीं, वो दाल मखनी बेच रहा है. So I was a coordinator, and although it was a reputed company, अब वहाँ पे ना थोड़ा सा पुराना था, an old company. तो वहाँ पे पुराने तरीके से काम होता है, as in आपको रगड़ा जाता है as a coordinator. Like कि आप 12 बजे तक 1 बजे तक बैठोगे, सुबह 8 बजे भी आप ही आ रहे हो. So that was the situation which somehow ठीक है, काम कर रहे हैं. तो जिन्होंने मेरे को हायर किया था ना, she actually moved on, she got promoted. अब एक नई आती है बॉस जर्मनी से, and with no idea how work culture is in India. So I realized कि what happened within that time period कि she was handling important events on her own, and me being a coordinator, I was being blamed for not taking payment. तो मेरे को उस टाइम लगा यार यहाँ तो फंसूंगा मैं पेमेंट के चक्कर में. यहाँ पहले एक बार हो चुका है 50,000 रुपए, अब नहीं. और वो एनवायरमेंट फिर और डिटीरियोरेट ही होता है उसके बाद, ऐसी चीजें. So somehow मेरे पास जॉब नहीं थी, and I resigned. But luckily within 10 days I got another job. तो उस टाइम पे बस रोलर कोस्टर राइड की तरह ही चल रहा था. अब ये मैंने एक छोटी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो 1 साल तक कोशिश किया, क्योंकि इनके भी बड़े सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट ट्राई करता रहे. एंड फिर था माइंड में कि यार कहाँ आ गया हूँ, वापस जाना ही है. एंड जो कंपनी सी में जो पहली सेल्स जॉब थी, वहाँ पे जो मैनेजर थे वो किसी अच्छी कंपनी में वहीं पर दिल्ली एनसीआर में ही बिकेम द बॉस. सो समहाउ वो कनेक्शन बैठा, बात हुई, एंड आई जॉइंड दैट. वो करा मैंने. तो वहाँ पे मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, ज्यादा सीखने को मिला. वहाँ पे मैं बड़े मेजर ग्रुप्स हैंडल करता था. ग्रुप एज इन so I even once sold a menu for 18,000 rupees to a foreign group during F1. That was a buffet. मतलब 80 लोग 18,000 रुपए पर पर्सन का मेन्यू. It's
लाइक एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, 1800 रुपए कौन देता है गाने के। तो वो एक्सपीरियंसेस देने के बाद फिर मेरे को एक बीच में अपॉर्चुनिटी आई कि विच इज वेरी क्रॉस रोड एक और कंपनी थी, एंड दे सेड कि भी हम लोग यहाँ पे एक लग्जरी नया बैंक्वेट सेटअप कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। सामने से ही अपॉर्चुनिटी तो मैंने ग्रैब कर दी, मैंने कुछ नया करते हैं बिकॉज आई थिंक, बट आई थिंक वहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी कि मैं वापस क्यों सेम डेजिग्नेशन में या क्यों जल्दी मूव कर रहा हूँ जब अब थोड़ा सा लाइफ सेटल लग रही है। वहाँ पे सिर्फ एक ही इशू था कि जो मेरे वहाँ पे जो ये जो मैनेजर थे इनको थोड़ा मूड स्विंग्स का इशू था। तो बट ठीक है, दैट्स ओके, एंड ट्रस्ट मी उन्होंने एक बार मेरे को चांटा भी मार दिया था क्योंकि गेस्ट का उनको लगा था कि मैंने सही हैंडल नहीं किया, एंड बट मैंने इग्नोर कर दिया था बिकॉज आई थिंक ही एक अंदर से था कि यार इस बंदे ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है और शायद छोटा भाई समझ के मारा है, बट आइडली यू नो आई वुड नॉट एनकरेज दिस टू एनीवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अगर आपने ऐसा आपके साथ हुआ है प्लीज गो टू एचआर। करेक्ट, दैट इज रियली इनसेन। हाँ, सो दैट वाज इनसेन, बट उससे ज्यादा कुछ ज्यादा वहाँ पे चैलेंजेस हुए नहीं, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली। फिर सेकंड वाले में गया तो वहाँ पे एक फॉरेनर बॉस थी और वहाँ पे 6 महीने हमारा बहुत अच्छा चला, एंड आई वाज डूइंग वेल, मतलब विद इन 6 मंथ आई वाज परफॉर्मिंग। तो वहाँ पे मेरे को वेडिंग्स का सेगमेंट मिल गया, वेडिंग्स अचानक से वेडिंग्स हैंडल कर वेडिंग्स करते करते जब वहाँ पे 10 महीने तक हो गए तो वहाँ पे क्या बड़े सारे चेंजेस हो गए। वहाँ पे कोई बॉस ही नहीं, पहले वाली चली गई, उनको निकाल दिया। 6 महीने में आप फॉरनर हो, आप हैंडल नहीं कर सकते। फिर एक और आ गए वो कुछ और डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज। वो बेसिकली एक फ्रेंड था मेरा, स्कूल फ्रेंड, वो मिला मेरे को, एंड आई वाज सरप्राइज कि वो भी होटल्स इंडस्ट्री में है एंड सेल्स में ही है, मतलब सेल्स एग्जैक्टली सेल्स में नहीं था, इट वाज मोर ऑपरेशनल सेल्स, बट हाँ उसी में था। एंड ही सेड यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आएगा। मैंने कहा भाई अब यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, और हमें ना एक डर ये भी था कि वहाँ पे ना हमारे 2 डिपार्टमेंट सेग्रीगेटेड थे सेल्स के। नॉर्मली क्या होता है, सेल्स एज एन होल इज 1 डिपार्टमेंट, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली देयर वर 2 डिपार्टमेंट्स, वन वाज माइस एंड वन वाज नॉर्मल सेल्स। तो माइस में क्या होता है, रूम्स बैंक्वेट की जो कंबाइंड क्वेरीज होती है। तो जो रूम सेल्स वाली बॉस थी ना, हमें ये डर था कि कभी इनके अंडर आके हमारे डिपार्टमेंट आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो चिल्लाती ऐसा था कि मतलब दिल में अंदर से जब आवाज आती थी ना, दिल में धक धक हो जाती थी। तो उतने में तो मेरे को क्या, चल अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब कर लेते हैं, सीनियर डेजिग्नेशन है। अब वहां पे जब मैं गया तो वहां पे मेरे 1-2 फ्रेंड्स बोलते ही हैं कि हमें भी देख लो अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने उनको भी आई गिव देम अपॉर्चुनिटी। वहां पे थोड़ा सा आई रियलाइज, मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस ना पूरा सर्कल घूम के वहीं पर ही आ गया, क्योंकि वहां पे जो मेरे बॉस थे वो ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो। सुबह लिस्ट लेके बैठेंगे, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, अगर उनको रीजन भी दो ना, झूठ बोल रहे हो, तो वो इतने प्रेशर में काम करना। फिर गुड़गांव का जैम, उस टाइम तो गुड़गांव में ऐसा जैम लगता था, टोल हटा नहीं था उस टाइम पे, उस टाइम वो केस चल रहा था। गुड़गांव में 4-4 घंटे का जैम, वो मैनेज करो, वहां पे जाओ। ये फिर वहां पे ऐसे क्लाइंट आते थे कि वो कोई किसी की गन्स की शॉप है कुछ, मतलब हाँ रिप्यूटेड होटल था, बट आते थे ऐसे क्लाइंट 12-1 बजे तक 2 बजे तक बैठ रहा हूँ मैं। मेहनत अपनी तरफ से पूरी की, काम पूरा किया, उसमें नहीं था। अब यही वो कंपनी थी जहाँ पे मेरे को काउंसिल किया जाता था, इनसे फ्रेंडशिप मत रखो, इनसे करो, यहाँ जाओ, इनके साथ जाओ, वैसे करो। एंड इस तरह करते करते मेरे जो दोस्त थे उन्होंने तो जल्दी अलविदा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि भैया यहाँ पे नहीं होगा। बट यस, आई वाज स्टिल ट्राइंग एंड एक ना एरोसिटी में एक होटल खुल रहा था नया, नॉट जेडब्ल्यू ऑब्वियसली, उसके बाद बहुत खुले हैं, तो क्योंकि लोग पहले एज्यूम करते हैं कि जेडब्ल्यू को सबसे पहला खुला था, तो उसके अलावा था। तो मेरा बड़ा मन था वहां जाने का, एंड समहाउ मैंने बस भगवान से प्रे किया कि यार मेरा वहां हो जाए किसी तरह। तो अगेन लिंक्स लगा के कोई वेडिंग प्लानर आती थी वहां पे इस कंपनी में, एंड उसको मैंने रिज्यूमे दिया, उसने वहां किसी के लिए फ्लावर्स किए थे, वहां पे मेरा रिज्यूमे पहुंचा, एंड सो ऑल लिंक करेक्ट। अब वहां से मैं वहां पहुंचा, वहां इंटरव्यू किया। अब वहां फॉर्चुनेटली लोग भी अच्छे मिले और सिचुएशंस क्योंकि ऑलरेडी हैंडल की हुई थी, तो अब क्या था कि अब मुझे पता था कि कैसे आगे जाना है। अब इतनी सारी सिचुएशन जब हो जाती है ना, तो आपको थोड़ा रियलाइज हो जाता है कि आगे कैसे हैंडल करना है। तो इंटर डिपार्टमेंट से ज्यादा ना यहाँ पे डिपार्टमेंटल वॉर्स ज्यादा थी। सो क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है कि प्रोसेस फॉलो करते रहो, प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम भावनाओं में जाते हैं, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। मैं कहता हूँ आपको सुई भी देनी है किसी को, आपकी कॉर्पोरेट में देनी है, प्लीज आप मेल कर दो, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप पर्सनल नहीं काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, एंड मैं आके फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हूँ। तो मैं प्रोसेस फॉलो करता था, तो दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। प्रोसेस फॉलो करने से वहां पे मैंने बहुत अच्छे मतलब आई वुड से बिगेस्ट ग्रुप किए। वहां पे मैं प्रॉपर माइस में गया, आई हैड मेड सम गुड कॉन्टैक्ट्स, अभी भी मतलब टच में है। वहां से फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, जो मेरे वहां पे जूनियर जीएम थे, वो वहां मतलब जो वहां पे 2 जीएम होते थे, तो वो चले गए थाईलैंड। तो वहां पे वो
अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कहा मैं भी रिज्यूमे डाल देता हूँ. अब पैन इंडिया से सिलेक्शन हो रहे हैं, बट सिंस दैट पर्सन हैड वर्क विद मी, ही न्यू हाउ आई वर्क. उसको पता चला मैंने अप्लाई किया, उसका फोन आ गया मुझे, मेरा नंबर लिया कहीं से, ही सेड आई वांट टू हायर यू. तो वो पूरा फिर मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस उन्होंने अपना किया ही था. थाईलैंड से लोग इंडिया आके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वैसा भी हो रहा है. तो मेरा एक दोस्त था, वो उसने भी अप्लाई किया था एंड ही वाज जूनियर टू मी. तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार मेरा रिज्यूमे भी दे दियो. कह रहा पहला ऐसा बंदा होगा जो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कह रहा हूँ इसका भी ले लो, इसको भी कंसिडर कर लो. तो वहाँ पे ठीक है, उसका तो हुआ नहीं, उसका वही हुआ कि नहीं हो पाया, बट मेरा हो गया. एंड फिर लाइफ एकदम डिफरेंट, क्योंकि सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 3-4 फोल्ड हो गई. आप एक और नई कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे अलग एक्सपीरियंसेस हुए. अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कल्चर ही अलग. वहाँ पहले दिन सूट बूट पहन के मैं जीएम से मिलने पहुंचा, कह रहे इतनी गर्मी है शर्ट फोल्ड करो, कहाँ सूट पहन के आए हो. मैं तो मतलब मेरे लिए कल्चरल शॉक था पूरा. तो उनके 5 होटल थे, पहले तो उनके शो राउंड किए, फिर इनसे मिला जेंटलमैन से जिन्होंने मेरे को हायर किया था. फिर वहाँ पे जिस बॉस ने मेरे को हायर किया था वो चली गई. वो चली गई मेरे ज्वाइन करने से पहले. तो देयर वाज अनदर लेडी हु केम इन. सो बेसिकली दिस वाज एकॉर ब्रो, जस्ट टू टेल यू, बिकॉज़ हाँ ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज़ दे हैड, बट जो कंपनी थी वो डेस्टिनेशन एशिया थी. उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है मेनली, और ये 5 होटल्स हैं. पहले 3 महीने फिर इंडिया बहुत ट्रैवल हुआ, बॉम्बे में जूते घिस रहा हूँ, गाड़ी नहीं है करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपको कार मिलती है सेल्स के लिए या कुछ अपॉर्चुनिटी. मैं खुद से चल रहा हूँ, बारिशों में सेल्स कॉल कर रहा हूँ, दिल्ली में आ रहा हूँ. तो पूरा 3-4 महीने तो बहुत अच्छा, बहुत हार्ड वर्क किया. एंड देन व्हेन आई प्रॉपर्ली 4th मंथ में उन्होंने कहा कि यहीं पर ही अब थोड़ा सा कर लिया तो सेटल. तो वहां पे फिर मेरे रिजल्ट आने शुरू हो गए. इवेंचुअली टारगेट, मतलब जो हम 2000 बात का बेच रहे हैं रूम, हम 5000-7000 बात में इवेंचुअली बेच रहे हैं, और वो भी इंडियन मार्केट से, सब कॉन्टिनेंट से. इंडिया के आ रहे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप आ रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंट से बात हो गई, वहां से ग्रुप्स आ रहे हैं, मतलब फोन पे बैठे बैठे कनेक्शन बैठ गया, बात हो गई. श्रीलंका के ग्रुप्स आ रहे हैं, नेपाल के ग्रुप्स आ रहे हैं, मतलब बैठे बैठे. और वहाँ का ऑब्वियसली वहाँ पे भी कवरेज करनी पड़ी जो वहाँ के डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं. तो हार्ड वर्क किया, 3 महीने का हार्ड वर्क का रिजल्ट आया. बट एक थोड़ा सा रियलाइजेशन ये है, ये तो सच है, मैं बताना चाहूंगा, तभी भी आप फॉरेन जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको कल्चरली वहाँ पे आपको सेपरेट समझते हैं. हाँ, चाहे फेस पे ना बोले, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको लगेगा ही थोड़ा सा वो है. तो मतलब अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा हो रही है चीजें, और जो क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा पॉलिटिक्स देख लिया था, तो वो मेरे को इतना बॉदर नहीं किया. तो ऐसे ठीक है, अब मेरे को ये बॉदर नहीं करने चाहिए थी. तो वो मूव ऑन वाली चीज एक्चुअली मेरे लिए बहुत काम आई. बट फिर वही फरवरी 2020 वाज अ शॉक. वहाँ पे कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया. ओनर ने तो हाथ खड़े कर दिए. तो और माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, अगर वो बोलते उस टाइम चले जाओ तो मैं जा सकता था, बट भगवान को शायद मंजूर नहीं था, क्योंकि थाईलैंड में कम था कोविड, इंडिया में ज्यादा था उस टाइम पे, फर्स्ट वेव. तो फर्स्ट वेव आते आते फिर दिसंबर आ गया. तो अच्छा, बाय द वे मेरी वाइफ भी ट्रैवल इंडस्ट्री में थी, तो उसकी भी जॉब नहीं थी. तो हमने किसी तरह 6 महीने गुजारे. फिर उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. कोर्स है ना, बीच बीच में फंड्स आते थे. तो वन थिंग आई वांट टू एक्चुअली से दैट कि थैंक यू टू देम, क्योंकि मैं 3-4 बार मैंने ही फंड्स क्लेम किए. मैं भी कितने पैसे, 6-8 साल 1.5 साल में कोई कितना पैसा जमा कर लेगा. तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वीजा नहीं है तो और कुछ मिलेगा भी नहीं. तो मैंने कहा मुझे पता है, अगर मैं वीजा लेके यहाँ से, ये जो वीजा मेरे पास है और ये वर्क परमिट लेके चला गया, तो ये पेस ऑफ वेस्ट है. तो मैंने जीएम को फोन किया, मैंने कहा सर देखो, आई नो, आई थिंक देयर शुड बी अ क्लोजर. सो देन वी केम टू अ टर्म दैट दे विल एक्चुअली हेल्प मी विद द फ्लाइट टिकट, क्योंकि उस टाइम फ्लाइट टिकट वंदे भारत जो थी, जो 6000 बात यानी कि 12000 रिटर्न लेते थे हम, 30,000 बात वन वे थी. 60,000 रुपए की वन वे की टिकट. तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था, जो मैंने कहा चलो आप कवर कर लो. उसके अलावा कुछ मेरा टैक्स रिफंड आना था जो उन्होंने बाद में दिया. तो मैंने कहा अगर आप कुछ फुल एंड फाइनल नहीं भी दे रहे तो एटलीस्ट अगर आप इतना बड़ा अमाउंट मेरा कवर कर रहे हो तो ठीक है. तो मैंने रिजाइन दिया, डॉक्यूमेंट वापस किए, सब किया, एंड आई केम बैक. केम बैक के बाद भी मैंने सोचा कि कोई जॉब ज्वाइन करनी चाहिए. एक जॉब करनी ज्वाइन की, 3 महीने के लिए की. सेकंड वेव से पहले मेरे को मिल गई, मेरे कॉलेज की सीनियर. बट वहाँ पे एक तो सैलरी वाज हाफ. देन फॉरगेट अबाउट थाईलैंड, इंडिया की से भी हाफ थी. तो उसके बाद भी वो आपको ताने मिलते थे कि हमने 70 लोगों में से आपको हायर किया, तुम परफॉर्म नहीं करते. अरे कोविड के बाद कौन परफॉर्म कर रहा है? यू टेल मी वन पर्सन हु इज परफॉर्मिंग, आइदर यू रिड्यूस डाउन द रेट. देन ऐसा होता था कि वो खुद ही सेल करते थे, एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे कि इतने रेट पे क्यों सेल किया. एंड वेव्स, इट वाज पीक वेव. मैं वहां पे, मेरे को बोला जा रहा है सेल्स कॉल पे जाओ. तो मैंने कहा ये सब यहाँ पे ना चलता रहेगा, लेट्स फिनिश इट. मैंने डाल दिया. 1 महीने को उन्होंने LWP डाली कि दूसरी वेव आ गई है. मैंने कहा LWP रखो, ये रो मेरा पेपर, आगे नहीं आना. मैंने, उन्होंने पूछा श्योर? मैंने कहा मैं 100% श्योर हूँ. मुझे पता है कि
आगे जाके मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, वापस मेरे को उसी में जाना पड़ेगा, लेट मी ट्राई समथिंग ऑन माय ओन। उसमें मैंने कहा कि अब मेरे माइंड में आ गया कि अब मेरे को ना, मतलब इंसान होता है कि हम मैंने कई बार देखा लिंक्डइन पे पोस्ट, उस टाइम भी मैं देख रहा था नेगेटिविटी थी कि मैं कुछ कर लूंगा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा यार हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, आई लर्न दैट, आई रियलाइज कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन डू एनीथिंग। सो उस टाइम मेरे को, मैंने लिस्ट बनाई कि मैंने कहा मेरे पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, सबसे अच्छी चीज क्या कर लेता हूँ, सेल्स कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ। उस टाइम में एक फ्रेंड था, उसने कहा कि तू ना मेरे आइल्स के बेचा कर। मैंने कहा ठीक है। कह रहा मैं तुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा अपनी कंपनी का। वो एक घर में बैठ के आईसी कोचिंग देता है पुणे में बैठ के, एंड से मैं तेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा। ऑफर लेटर भी इशू कर दिया और कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट नौकरी थोड़ी ना करते हैं, वो तो बिजनेसमैन होते हैं। तो मैंने हंस के मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा पे कितना करोगे? तो ही सेड कि मेरी 10,000 की कोचिंग होती है, टारगेट विल बी 100 स्टूडेंट्स इन अ मंथ एंड आई विल पे यू 10%। सो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया एंड आई रियलाइज कि जो सबसे बड़ी कंपनी है आइल्स की, आइल्स निंजा या ये और भी जो थोड़ी बहुत है एडवांटेज आइल्स वगैरह, वो 100 स्टूडेंट नहीं कर पा रहे साल के। ये सर मेरे को कह रहे महीने के 100 स्टूडेंट करो एंड मतलब मैं तुम्हें 1,000 रुपए पर केस दूंगा। सेट कि भाई ये पागल बना रहा है। मैंने उससे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं भी थोड़ा आइल्स दे दूं, मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, मैं भी बीच बीच में कोचिंग दूंगा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब 11 साल पुराना फ्रेंड, इमेजिन। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत कर, कुछ नहीं होता, ऑनलाइन ट्रेनिंग बकवास होती है। मैंने फिर भी एनरोल कर लिया। मैंने कहा जो पैसे बचे हैं इन्वेस्ट करो। मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने एनरोल किया, आई लर्न आइल्स, मैंने पहला बैच पढ़ाया, मैंने पास कराया उनको और मैंने इसको पूछा, मैंने कहा आई हैव स्टार्टेड टीचिंग आइल्स। उस बंदे ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, डोंट कॉन्टैक्ट मी एनी फर्दर। सो मैंने वहां से उसको कॉम्पिटिटर नहीं, आई वांटेड टू टेल हिम कि डोंट अंडर एस्टिमेट और डोंट डीमीन एनीवन। करेक्ट। आप बढ़ रहे हो तो साथ वाले को साथ में या तो लेके बढ़ो, या फिर आप बोल दो कि मैं हेल्प नहीं कर सकता, पर ये मत बोलो कि भाई तू 1,000 रुपए मेरे से लेता रहे। मैं अगर तुम्हें 5 केस 10 केस डाल दूंगा, तुम मतलब कह रहे हो कि मैं महीने का 10,000 कमाऊं। राइट। स्टडी अब्रॉड के केसेस में हर साल भर में एक बार पैसा आता है, तो मतलब मैं पूरा साल बिना पैसे के रहूं, अगर मैं उसमें से 5-6 भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। राइट। तो उसमें भी आप मेरे को 50-50 कह रहे हो करने के लिए, नॉट 100%। यानी कि अगर किसी में 50,000 बनने तो you'll pay me 25,000। राइट। That was really less, like 10% of the total fee. मैंने उसमें मेरे को पढ़ा के समझ में आ गया था कि मैं कुछ स्टूडेंट से फीस लूंगा, थोड़ी से कम भी लूंगा, तो मैं मैनेज कर लूंगा। तो वो थोड़ा सा पढ़ाना शुरू किया, टॉफिल भी थोड़ा ऐड कर लिया, बट मेरे को उसमें वो मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने करियर गाइडेंस का एक बुधामी का बहुत छोटा सा बेसिक अमाउंट का कोर्स था, वो मैंने कर लिया क्योंकि अब पैसा थोड़ा बहुत फ्लो तो बन ही गया था। वो करने के बाद करियर गाइडेंस के बारे में नॉलेज गेन की, तो फिर मेरे को लगा कि शायद मैं करियर गाइडेंस करनी चाहिए क्योंकि मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। बट अगेन फिर वो वाला सिचुएशन आ गई जब मैं वो वीडियो मैंने देखी एंड आई रियलाइज कि भाई ये मेरे को स्टेज पे जाना है। तो मैं करियर गाइडेंस या कुछ भी करना चाहता हूँ तो मैं स्टेज पे करना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट आई मेंट टू डू। और जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मेरे को बाकी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे को कहीं ना कहीं पहले मैंने कुछ फ्री किए। ऑथर शेरी है, ऑथर शेरी, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड हिज नेम, ही इज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच। तो उन्होंने मेरा उनका मैंने 15 डे का फ्री वर्कशॉप अटेंड किया था ना। आई आस्क्ड हिम कि सर ये मेरा ना एक वीडियो है, मैंने आपके वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैंने अपने कॉलेज में जाके स्पीच दी है। उन्होंने वीडियो देखा, ही कॉल्ड मी अप, ही सेड व्हाई डोंट यू जॉइन माय कोर्स। मैंने कहा सर देखो मेरे पास नहीं है पैसा आपको देने के लिए, बीइंग वेरी अपफ्रंट। ही सेड तू कोर्स ज्वाइन कर ले, जब तेरा मन हो ना तब पे करती हो या तब कर सके। तो दैट गाय वाज सपोर्टिव, ही बिकेम मेंटर टू मी। तो मैंने उनसे सीखा पूरा पब्लिक स्पीकिंग, कैसे पोस्चर्स होते हैं, कैसे बोलना है, स्पीच कैसे बनानी है। सो वो धीरे धीरे जाके मैं अलग अलग जगह देता गया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। नीश डिसाइड थोड़ा बाद में किया, धीरे धीरे टाइम लगता है। एंड फिर धीरे धीरे फिर एक दो कंपनीज ने मेरा लिंक्डइन पे देखा। बाय द वे मेरी नेटवर्किंग हमेशा अच्छी रही है, मतलब मेरे बॉस 2 से लेके अभी तक सबसे अच्छे रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं। तो मेरी नेटवर्किंग कभी पूरी, और 11,000 कनेक्शन है, तो मेरी नेटवर्किंग अच्छी रही है। तो उससे मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज मिला। कुछ लोगों ने कहीं अब रैंडमली ऐड किया हुआ था, देखा, एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी अ पेड अपॉर्चुनिटी। तो बस अब वही कर रहा हूँ मैं। That is so wonderful. So if I talk about your vision, mission and goal for next 5 to 10 years from now, what that would be? So my mission is very clear. I want to influence at least 10 lakh lives by telling them about this dynamic world. Indirectly it's related to mental health only, because eventually इसका जो result होता है, you get into the mental health problems. But I think learning from my situation, because when I speak, I use my personal anecdotes. तो मैं उसमें personal anecdote इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर मैं किसी और की स्टोरी सुनाऊंगा तो आप शायद मोटिवेट हो जाओगे थोड़े पल के लिए, बट पर्सनल एनेक्डोट से आप पता चलेगा कि हाँ इस इंसान ने खुद किया है। आप मोटिवेशन स्पीकिंग देखोगे, चाहे बड़े से बड़ा उठा लो, वो केस स्टडी उठा लेंगे और अपने किसी न किसी की बता देंगे। आपकी लाइफ में वो चेंज कैसे, आपने कैसे अप्लाई किया है। करेक्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आई वांट टू टेल दैट टू द वर्ल्ड कि मैंने उस सिचुएशन में, मैंने अपनी लाइफ को उस सिचुएशन
सिचुएशन, जब वो सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है अपने आप वो स्टोरी मेरे को याद आ जाती है, मैं उस सिचुएशन से कैसे निकला, करेक्ट, तो मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, तो वो मैं पर्सनल एनेक्डोट्स ही शेयर करता हूँ। मैं इवन स्टूडेंट से पर्सनल एनेक्डोट्स शेयर करता हूँ। आई डू नॉट शेयर, आई ट्राई टू अवॉइड दीज स्टोरीज व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू माय लाइफ। करेक्ट। वो दिखानी है तो मेरे को किसी ट्रेनिंग में वीडियो दिखानी होती है तो मैं एज एन इंस्पिरेशन वो वीडियो दिखा देता हूँ। आप वीडियो देखो, मेरे से मत सुनो वो स्टोरी, वो वीडियो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। राइट, मेरे से सुनना, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, मैंने कैसे वो हैंडल किया, मैं कैसे आया, मैंने कैसे वो चीज अप्लाई किया है। बिकॉज़ इफ यू हैव अप्लाइड इट देन ओनली आई कैन टेल। आई हैव टू बी दैट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मेरा मिशन क्लियर है, मैं 10 लाख लोगों को बोल के, चाहे कॉर्पोरेट्स हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, प्रेफरेबली कॉर्पोरेट्स, बिकॉज़ कॉर्पोरेट्स में थोड़ा सा ज्यादा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्पेशली टू लीडर्स। सो आई वांट टू क्रिएट लीडर्स, आई वांट टू हेल्प लीडर्स लीड इन दिस dynamic world. I want them to thrive. Even middle management, I want them to grow, have a different mindset. तो वो सब के बारे में मैं I want to, and that's my vision as well, that I want to reach different corporates and spread my message to those 10 lakh people. So Great. So if I talk about your life learnings from your personal and professional life, so can you share like 2 to 3 learnings from your personal and professional life? So personal life में, as I said, that I've always had that situation कि हम उस सिचुएशन में रहे जहाँ पे लोगों की धमकियां आती थी, तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुम्हारे बच्चों को घर से उठवा लेंगे। तो आई वांट टू से दैट ये जितने जो मतलब व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन और इन एनी सिचुएशन व्हेन समवन इज सेइंग दैट यू आर बीइंग एक्चुअली बीइंग प्रेशराइज्ड बाय एनीवन इन्फ्लुएंशियल, सो डू नॉट एक्चुअली अंडर एस्टिमेट लॉ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट लॉ। हाँ, उसमें रगड़े बहुत होंगे, आई एम टेलिंग यू, एंड यू प्रॉब्ली माइट नॉट गेट द रिजल्ट, बट यस even the fear of law among these people are more. मतलब not just the people who give loan, but even anyone, be it anyone. So do not underestimate law, do not underestimate yourself. कई बार जो ज्यादातर बातें होती है वो खोखली होती है, and before anyone else take a step, I think you should take a step. So be an action taker. Number one, we do not fear. We have to be fearless. चाहे कोई भी हो आपके पास, कोई भी सिचुएशन आ गई. दूसरा, not just from people, but you have to be fearless from everything. Correct. आ गई सिचुएशन ना, अब आप आ गए उस प्रॉब्लम में, आप पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, आपके झगड़े हो गए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो गए, आपके दोस्त से झगड़े हो गए, आप क्या कर सकते हो उसके लिए? बी fearless and you have to move on. Let it be. जो कंट्रोल कर सकते हो वो करो, एंड सोल्यूशन ढूंढो. राइट डाउन 10 सोल्यूशन. टाइम माइंड में नहीं आएगा 10 सोल्यूशन लिखो, क्या ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. फिगर आउट दैट वन मेंटर जिससे आप डिस्कस कर दो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड मेंटर्स इन लाइफ. अगर आपको लगता है कि एक नहीं है, मल्टीपल मेंटर्स हो तो मल्टीपल मेंटर्स. Correct. They can be people in different. Correct. No problem. Like no, there is no such rule that you only have to have one mentor only. You can have multiple mentors who can guide you depending on the life situation you are in. Correct. That's great. So we were talking about these things. Now I'd like to know more onto it. What exactly is VUCA world, and how does these situation arise commonly in these times? VUCA world is basically is an acronym. इसका फुल फॉर्म है volatile, uncertainty, complexity and ambiguity. हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें सिचुएशन में आफ्टर कोविड-19, बट अगर आप देखो कि जब से जो टेक्नोलॉजी है इसने फास्ट पेस किया है, we have been in this situation. So 1987 में actually this word came in, and this was given by American Army because they were in with war with Iraq, Iran, different countries, plus they were having Cold War with USSR. वो multiple situation में थे, and the situation was so uncertain. It was volatile and complex थी, और बहुत confusion थी. रशिया में जाके लड़े, यहाँ जाके लड़े, किससे बचे या साइबर अटैक से बचे. तो that is the situation right now. अभी 3 महीने पहले ONGC का वेबसाइट हैक हो गया. किसी को पता था क्या ONGC जैसी कंपनी का वेबसाइट हैक हो जाएगा? आप कल ही का सिचुएशन ले लो. So nothing political. I'm just saying it can happen. A government in a state was running peacefully. अभी बीच में से कुछ लोग अलग हो गए and they're forming their own thing. तो ये सिचुएशन रातों रात हो गई ना, आप कुछ तो नहीं कर सकते ना उसको लेके. So that is how VUCA world is. That is how our corporate and personal life is now. आप अचानक से क्या कर सकते हो? So that important to learn more about this VUCA world. Now here I want to talk about technology because technology जितने fast pace हुई है, this VUCA world has risen more. पहले क्या होता था? पहले सबसे पहले लेटर्स होते थे. तो अगर हमें किसी से कुछ पता भी चला है, वो लेटर के थ्रू पता चला है, उस लेटर के बाद वो पेपर वर्क होके वो कुरियर होगा या फिर वो लेटर 10 दिन बाद आएगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तब वो सिचुएशन एक्ट में आएगी. Problem have already been sorted out. As I said in the beginning, my Dadaji was actually he went missing, and so how do we know that he died? एक तार आया था, हफ्ते बाद बाहर आता है तार, he is no more. जब तक my dad tell me कि जब तक उन्होंने पुलिस वालों को बताया तब तक obviously कुछ उतना सिचुएशन वॉलेट था ही नहीं, तो कुछ पता ही नहीं चला. तो आप सोचो कितनी स्लो पेस वर्ल्ड थी. अब देन फोन्स आ गए, फोन्स के बाद इंटरनेट भी आया, बट इंटरनेट का वैसा यूजेज नहीं था कि कम्युनिकेशन वाला. अब फोन में क्या होता था, पहले भी फोन पे बात होती थी, फिर मैं कई बार
ना ईमेल से बात नहीं होती थी पहले, ईमेल से नहीं डॉक्यूमेंट शेयर होते थे, पीडीएफ नहीं होता था, वो डॉक्यूमेंट आपका मेल या कुरियर से ही होता था। ईमेल पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन आती थी, तब भी स्लो था। पर्सनल लाइफ में भी वही चल रहा था, फोन पे आया, अच्छा जब तक होगा, जब मिलेंगे तब देखेंगे, जब मिलेंगे तब बताएंगे। आज हम कहाँ मिल रहे हैं? जूम पे मिल रहे हैं। वी डोंट हैव टू मीट इन पर्सन। आज मेरे को किसी से मीटिंग करनी है तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो किसी को कम्युनिकेट करना है कि ये चेंजेस रातों रात एचआर की पॉलिसी चेंज कर दो या अपनी पर्सनल लाइफ में तुम्हारे ये धमाका हो गया है, तो मेरे को सिर्फ एक फोन कॉल, एक व्हाट्सएप ही हो जाता है। आजकल व्हाट्सएप से ही काम हो जाता है। फॉरगेट अबाउट दिस, इट्स जस्ट वन व्हाट्सएप, जस्ट वन मैसेज। और फॉरगेट अबाउट जूम, आजकल तो वीडियो कॉल से ही हो जाता है। ये धमाका हो गया है। ये चेंजेस हो गए हैं। You can do like video call at any point in time. आप सोचो, लाइफ इज सो डायनामिक। हाउ डू यू नो हाउ थिंग्स विल बी इन 2030? We are in 2022, मैं तो 2030 की बात करता हूँ, 50 तो छोड़। डू यू थिंक, अभी आई वाज रीडिंग द अदर डे, 2030 की जॉब्स अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई हैं। अभी हम 2022 पहुंच चुके हैं, खत्म होने वाला आधा निकल चुका है, 2030 की जॉब्स नहीं निकली हैं। पहले हमें 5 साल 10 साल का पता होता था। 60,000 स्टार्टअप, 60,000 न्यू प्रोडक्ट, दैट्स हाउ द वर्ल्ड हैज बिकम वॉलेटाइल। रातों रात कंपनीज डूब जाती है, जेट डूब गया, किंगफिशर डूब गया, आपको पता चला, लोग भाग गए रातों रात, नीरव मोदी भाग गए, आपका वो बैंक बंद हो गए रातों रात, अगले दिन न्यूज आ रही है बैंक बंद हो गए, लोग लाइन लगा के खड़े हैं, सरप्राइज हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से यू नो थिंग्स हैज बिकम मोर VUCA. We are in a VUCA environment and you need to change your mindset, you need to change your thinking based on that VUCA world. नहीं तो आप क्या होगा कि आप ये कोसोगे कि भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं हमेशा स्ट्रगल करता रहता हूँ, मैं हमेशा ऐसे प्रॉब्लम में हूँ। I know this can happen. लोग कहेंगे कि आप उस सिचुएशन में, इसीलिए मैं अपनी स्टोरी पहले बताना चाहता था कि मैं उस सिचुएशन में रहा हूँ, मैंने वो सिचुएशन देखी है और वो सिचुएशन आ सकती है। आपको उससे बाहर निकलने के लिए आपको हैंडल करनी पड़ेंगी चीजें। True. And these are common problems basically in front of everyone. Like you are in corporate world, you face these challenges. Technology this time is really fast, and these kind of situation arising so early. Like you never know what would happen next day when you like go to your office, or maybe when you come out of your office, how things gonna change. So onto it further, like how to handle such issues, and what do we need to change in our life, as well as what corporates needs to do to change their approach. Okay, so I would say personally and professionally, there are two approach. Professionally, first I am so certain things are common. Like सबसे पहले तो we need to be we should accept change. We have to accept change. आपके यहाँ पे change होगा and immediate होगा. आप उसको लेके कुछ नहीं कर सकते. You cannot control. Correct. Be it corporate, be it personal life. रातों रात आपकी दुनिया बदल जाएगी. You cannot do anything. Right. But you need to close your eyes and accept it. ये हो चुका है. This has happened. I need to take the next step. Then you need to control what you can. और क्या control, आप क्या control कर सकते हैं? आप अपने लाइफ के गोल्स कंट्रोल कर सकते हैं ना, आप कैसा फील करना चाहते हो वो कंट्रोल कर सकते हैं। आई नॉर्मली टेल पीपल कि आप अगर किसी से बात करनी है ना, उससे पहले आप लिख लो कि मैं ऐसा फील करना चाहता हूँ। ट्रस्ट कई बार काम करता है। जैसे आपको अपने बॉस से मिलने जाना है कल, आई वांट टू फील प्राउड व्हेन ही टॉक्स टू मी। कई बार होता है कि वो आपको ऐसे, मतलब इट्स काइंड ऑफ एफर्मेशन, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एफर्मेशन, बट हाँ समटाइम इट हैपेंस, सो यू ट्राई दैट। आई थिंक दिस थिंग वर्क्स, सो यू नो, एंड बी मोर हार्मोनियस है। इसके बाद आपको भी यू नो वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस में यार बात मत कर, छोड़ दे। थर्ड थिंग इज you need to actually remain happy in this, क्योंकि आपके लाइफ में चेंजेस होते रहेंगे, धमाका होता रहेगा, रातों रात चीजें चेंज होंगी। आप दुखी हो जाओगे तो क्या कर लोगे? You need to be very happy about it. ठीक है, कुछ गलत चीजें भी हुए हैं, बट अंदर से you need to be happy, content हो गया। चेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं अपने गोल्स पे फोकस करूंगा, मैं अपने मोमेंट लोगों से बात करने हार्मोनियस रहूंगा, एंड आई विल ट्राई एंड बी हैप्पी। हाँ, कई बार थोड़ा सा वो मोमेंट है वो ऐसा हो सकता है, अगेन एज आई सेड, शेड योर टीयर्स एंड कम इनटू दैट हैप्पी मोड। Situational thing when you are like feeling awkward, maybe you are feeling stress, anxiety is there, everything, whatever is there, that could be momentarily. You should like take it in that way, spend some time with that feeling. That is okay, but you need to shift your emotions to the right approach, right way. Then उसके बाद we have to become more fearless. अभी क्या है, I know life is uncertain, but आप fear में जब होते हो ना, you cannot take decision. तो मैं fear में ये नहीं कह रहा कि आपको छिपकली से डर लगता है तो उससे मत डरो, ठीक है, that's fine, that's everyone has the phobia, but हाँ, as in देखो fearless in the sense that अगर आप डरते रहोगे कि क्या होगा, तो फिर वो वही होगा जो होना है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि जो होगा वो देखा जाएगा, let me see how can work around it, मतलब इसे कहते हैं कि रिकवरी, काइंड ऑफ रिकवरी और सेफ गार्डिंग योरसेल्फ। एक प्लान बनाओ ना कि ओके अब ये गलती हो गई है मेरे से, तीर तो कमान से निकल गया, मेल वापस नहीं आएगी, पढ़ ली, what you can do in that situation, whatever happened। अब वो सिचुएशन में आपको गाली भी पड़ेगी, आपको सुनाया भी जाएगा, पर आप नेगेटिव मोड में चले जाओगे, यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, व्हेन यू आर फियरलेस, आप प्लान बनाओगे कि अब मेरे को ये रीजन देना है। हाँ, कई बार रीजन देना सही रहता है, देयर इज नो हार्म इन दैट। मेरे से एक दो बार गलती हो गई थी, क्यों किया
आपने सर हो गई गलती, आई थिंक, बट गिविंग रीजंस, मेकिंग अ प्लान की हाउ टू कम बैक टू दैट थिंग, कि उस मोमेंट को वहां पे किल करके वहां से कैसे वापस आना है, या अपना वो ट्रस्ट दोबारा कैसे जगाना है उस पर्सन के अंदर, और पर्सनल और प्रोफेशनल में दोनों में ही रहेगा। पर्सनली आई वुड से इमोशनली वन हैज टू बी वेरी साउंड नाउ, क्योंकि अब इमोशंस के साथ आप लॉन्ग टर्म तक डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में हो, इफ यू आर इन एक्सट्रीम सैडनेस, यू विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजंस, एंड दिस इज द टाइम कि अब आपके साथ एक चीज एक्स हो गई है, उसके बाद हो सकता है और कुछ एक्स हो। हाउ डू यू नो कि अगले मॉर्निंग क्या एक्स होने वाला है? तो यू हैव टू थिंक कि वहां पे वो दूसरा एक्स होने से पहले या तीसरा एक्स होने से पहले अगर आपको पता है उस चीज के बारे में, तो मेक अ प्लान, या फिर वो सिचुएशन में अपने आप को ढालो। तो आई थिंक दीज आर द बेस्ट मेथड्स राइट नाउ। ऑब्वियसली देयर आर मोर वेज, बट आई थिंक ये सबसे जो कॉमन है ना, दिस इज दी वन। एंड इवन फॉर कॉर्पोरेट लीडर्स, दे नीड टू एक्सेप्ट चेंज एंड दे शुड बी एबल टू मेक देमसेल्फ fearless and their employees fearless. Correct. And they need to be like empathetic as well. कल को गवर्नमेंट ने रूल बना दिया तो your company can't do anything. You have to divide that tax. You have to divide that tax. You have to pay certain extra tax. You have to pay that extra tax. Right. You have to change the salaries. You have to change the salary. Right. So again, coming back to you, like you already mentioned that you were an introvert initially. So onto it further, like are you still an introvert or an extrovert now? While facing your audiences, like what are the pluses and minuses of the same? I think introvert and extrovert personality is in everyone. मतलब मैं अब जो मुझे समझ में आया है कि even the quietest person can speak on the stage, but अगर आप एक introvert हो तो आपको मेरा अपना me time चाहिए। Like अगर जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, so you know probably I will sound extrovert. मैं अभी जाके स्टेज पे बोलूंगा तो कोई कह नहीं सकता कि ये इंट्रोवर्ट बंदा है, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं शायद 1 घंटा आधा घंटा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहूंगा फैमिली के साथ। सो सबके अंदर एक वो दूसरा हिस्सा होता है। क्लास 12 तक मैं ऐसा इंट्रोवर्ट उस वे में था कि मैं अपने साथ बैठे हुए लोगों से बात नहीं करता था। सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग थे बस, जो फ्रेंड्स थे उनसे बात होती थी, उसके अलावा किसी से बात नहीं होती थी। मेरी हर रिपोर्ट कार्ड में लिखा था शाय एंड इंट्रोवर्ट, कॉमन कमेंट आई रिमेम्बर। और उसके बाद भी कई बार, बट आई वुड से कि मेरे को सिचुएशन ने चेंज किया। व्हेन आई वेंट इनटू कॉलेज, वो अंदर से चीजें निकल गई ना, वो अंदर बैठी हुई थी बातें, वो सारी निकल गई, क्योंकि मेरे को वैसे फ्रेंड्स मिले जो थोड़े आउटगोइंग थे, उन्होंने मेरे को बाहर ले जाना शुरू किया। बट हर कोई इतना लकी नहीं हो। आप इंट्रोवर्ट रहो, बी एन इंट्रोवर्ट, बट आई थिंक वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट फॉर अ सिचुएशन यू हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट। अगर आप अपनी वॉइस नहीं उठाओगे, सो दैट कैन बी वेरी दिस थिंग। फर्स्ट स्टेज, आई थिंक द ओनली चैलेंज व्हिच आई सी इज कि जो स्टेज फियर है वो डे 1 पे भी था, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, अब भी है, और मैंने तो ये रियलाइज किया कि शायद आगे तक रहेगा। बट स्टेज पे आने के बाद आई हैव टू गिव माय बेस्ट। आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच आई फील कि बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट विल नॉट इम्पैक्ट फॉर मी। बीइंग ऑन स्टेज इज मोर लाइक, बट अगर मैंने वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं ना, अगर उसमें मैंने 60 या 70% को भी इंस्पायर कर दिया ना अपनी लाइफ की स्टोरी से, आई थिंक माय वर्क इज डन। करेक्ट। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज whether you are extrovert or introvert, it doesn't make any sense when you are onto public speaking. I have seen people who are extreme extrovert, they are not able to perform well on stage, and I have seen people who are extreme introvert, they are doing great on stage. So it's how you project yourself on the situation that really matters. So that was really a wonderful thing, because how you carry yourself and how you transform within you, that is the real key. So further to this, if I talk about the kind of support you got in your journey, who were the people supported you the most? I think my mother was there since the beginning, क्योंकि being the only child, I think my mother was there since beginning. जो मेरे father थे उनकी तरफ से I think monetary wise हम लोगों को शायद ज्यादा challenges आए, but I think अगर मैं बात करूँ ना as in support, maybe not morally, but you know one thing that I would say कि जैसे I'll tell my father at 5 o'clock कि मेरे को ट्रेन पे जाना है, last minute meeting आ गई है, तो वो उठ जाएंगे और वो गाड़ी चला देंगे उस टाइम पे। अगर मैं उनको बोलूंगा कि नहीं मेरे को रात को कुछ खाना है, मतलब even for my son he do that. And I think one thing कि अगर वो monetary wise situation में रहे हैं, मैं भी शायद उन्हें, मैं ये कहूँगा हो सकता है उन्हें बिजनेस करना नहीं आया। As a son I want to accept that fact. I don't want to lie कि नहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेरे को शो नहीं करना। I want to be truthful to, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं कहूँगा कि you know कि जैसे सुबह अगर मेड नहीं आ रही है तो सुबह उठ के खुद खाना बना देना and all that। जैसे आज मैं वहाँ से आया ट्रेवल करके, I told you I was traveling, मैं 7:30 वो मेरे को वहाँ लेने आए ट्रेन स्टेशन की, दिल्ली गेट उतर जाइए, लेने आए मेरे को सुबह 6-6:30 बजे, फिर घर आके खाना बनाया नाश्ता, फिर मेरे बेटे को भी देख रहे क्योंकि वाइफ टाउन पे गई है, मैं थका हुआ था, तो वो वैसा सपोर्ट उनका हमेशा रहा है। एंड यू नो देन माय फ्यू ऑफ माय मेंटर्स ऑफ कोर्स, जिनसे मैं बात करता हूँ जो कभी सपोर्ट करते हैं। एंड हाँ, मैं कहूँगा व्हेन आई लॉस्ट माय नाना जी
in April. So I think he was a good support, especially for my mother who was there. I think these three people were support, immediate support के लिए these three, and then I think my wife was जब हम Thailand में थे सब कुछ हो गया था. अभी भी देखो she is doing work and she got a salary which was half than what she was getting earlier. But she's there कि तुमने जो करना है कर लो, अभी टाइम है, फिर बाद में नहीं मिलेगा अगर तुम्हें क्योंकि बाद में जॉब करनी है. तो वो सपोर्ट आई थिंक मेरी वाइफ की तरफ से अब जो है वो भी है. आई थिंक शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव इन दैट. तो ये चार लोग तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं. Great. So if I talk about inspiration and motivation in life, so how you get your inspiration and motivation from, whether it is people, book or something else? So of course I read books. Books से मेरे को मिलता है like Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki changed my entire thought process on managing wealth. And हाँ उससे मैंने थोड़ा apply भी किया and it did help me. Fortunately जो मैं survive किया है I did because of that. Then I would say recently I started following this guy Simranjeet Singh. He's a motivational speaker. Okay. And I was really impressed. मतलब मैं उस बंदे को as an idol देखने लगा हूँ कि that guy, the way, so not because what he speaks about, but how he speaks, how he presents, how he make people, how he inspire people. तो वो एक मेरे लिए है कि मैं वैसा करूँ. एंड उसके अलावा आई थिंक सेल्फ इंस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पहले निकले आगे भी निकलेंगे. जब आप वर्स देख चुके होते हो तो उसके बाद वर्स हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, दोबारा वर्स में आगे, लेट्स डू इट. Your own struggles inspires you. So what is your take on success? How does it look like to you? So for me, जब हम सक्सेस की बात करते हैं ना, when we talk about, so lot of people would say राज शमानी, अंकुर वारिकू, हम उन लोगों को फॉलो करते हैं. अरे आप उनको छोड़ो. These guys have always been at the top of the ladder. Nearby startup किया, हमेशा MBA करके top position ली. I'm not saying he's not guiding you right. He's obviously good to listen and learn things from him. But I think idolizing yourself as in first कि आपने personally क्या achieve किया है वो बहुत जरूरी है. Correct. आप हम हर कोई इंसान जाके अंकुर वारिकू या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा या सोनू शर्मा नहीं बन सकता. हर कोई बंदा अश्नीर गोवर नहीं बन सकता. Right. You can try, write down what you have achieved. Your personal success is the first thing. And personal success के बाद जो second है, that is then you can get inspired from people who have actually achieved in your area. हर किसी की जर्नी अलग होती है. जो आपकी फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हैं, अगर कोई ऑथर भी है जो इतना कोई पॉपुलर नहीं है बट कि आपकी फील्ड में उसने सक्सेस अचीव की है, कोई बंदा है जो सीनियर लेवल पे पहुंचा है, आप उसको भी देखो ना. They have also achieved certain things in life. यही थोड़ा ना कि मैंने एक मर्सिडीज ले ली, BMW ले ली, वही मेरे लिए सक्सेस है. हाँ, बट आई एम श्योर if you learn a little bit of money management, तो आप एक एम्प्लॉय होते हुए भी मर्सिडीज BMW ले सकते हो. Trust me, this what I have read and I think I have realized myself because जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी और मैंने थोड़ा सा फॉलो किया, मैंने did this right kind of investments in my life or right money decisions, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ but I am more stable than when I was earlier. Right. हाँ. Correct. So it totally depends on you how you see success as and the kind of effort you make or you put in. So that really matters. So we are moving on to the last question for the day. Any message, advice you would like to share with our audience, viewers and listeners? I think yes, it is very important कि we should not break down when the situation comes, क्योंकि अब जो VUCA world है या VUCA environment है, we are living in that and we need to accept those changes and we need to look at things differently. पहले क्या होता था, वो growth mindset और वो सब की वीडियोस बहुत पॉपुलर होती थी and I think वो चीजें भी अब थोड़ी सी पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई है because things have to be slightly more different. अभी क्या है, अभी VUCA mindset है, अभी not just thought process, now you need a VUCA mindset. Correct. जिसे मैं कहता हूँ VUCA mindset, जिसमें you have to have a very balanced mindset, not just a growth mindset, you have to have a balanced mindset. Right. वहाँ पे आपको कैसे accept change को accept करके आगे move on करना है, Correct. कैसे resilient होना है situation. So I think and do not get jealous about or look at others' journey. Look at Correct. your own journey. अपनी journey को देखो. Everybody has his own or her own journey. हाँ, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, किसी के 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपको लगता है यार ये मेरे वीडियो तो नहीं चल रहे, इसके ये वाले वीडियो चल रहे हैं, तो आप ये सोचो उसने स्टार्ट कब किया था. Correct. So go at your own pace, but do not forget your own journeys, your own time period, and yes, ensure that I'm not a wealth expert, but yes, ensure that please do read this book, these books on wealth management, global books, because वो आपका mindset जरूर change करेंगे. Correct. And start accepting change. One, accepting change is very important. कोई भी चीज स्टेप लेने से पहले आज की डेट में first thing is you should accept change. Correct. And change is the constant thing which makes you going. Yeah, and it's fast paced now. Correct. And yeah, technology is getting so fast. We need to be
be adaptable and we need Yeah. to be ready for the new changes to come in. Yeah, you never Right. know. In future, new contracts will happen on Meta within a day's time. Right. So, Right. what an amazing insights you have shared. It was really amazing to hear from Thank you, Manu, today. I really enjoyed our conversation. Looking forward to Same hear here. more from you again soon. Thank you Thank so you. very Same. much for your time and the Thank you. knowledge Thank you. sharing you have done with us. Also, I'd Thank you. like to share your social media links along with the video, and that will be really helpful for the audience to be in touch with Sure. you, take your help and guidance wherever they can. So that would be one thing. Like I always recommend that people should be in touch with you and take your guidance wherever possible. So guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much everyone Thank for you so much. watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye. Thank you.